Hello my dear aspirants, I hope all of you are doing fine, right? আশা কৰো তোমালোক সবে ভাল আছা, okay? আমি জুৰুটো হৈছো এই সেশনত so that we can discuss about the IBPS RRB 2023 details, okay? So the notification has come up, okay? এই বছৰ তোমাৰ ক্যালেন্ডাৰ আহি গৈছে, right? So what are the vacancy details, qualification, syllabus, you know, age criteria, eligibility, each and everything I'll be discussing in this video, okay? For full strategy I'm not covering in this video because video বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, okay? And you might get bored. So I'll just keep it to the point specific that here we are just discussing about the official notice, okay? For full strategy I'm going to make one more video, okay? Because we do not have that much time. So in this span of time, how can we crack the exam? I'll make a video on that, okay? So without further ado, let's go and see the official. I'm taking you to the official website of RRB, okay? ये रहा official website. Let me go there, ठीक है? चलो. अच्छा, first of all तुम्हार window advertisement আহিছিলে, okay? Window advertisement तुम्हार details দিয়া আছিলে কেতিয়া কি হ'ব. Online registration তোমার স্টার্ট হয়ে যাব আজি পা হৈ আছে 1st, okay? June 2023 to 21st June 2023. তোমার লোক আজি পৰাই fill up কৰিব পাৰা বা কালি পৰহি কৰি দিবা, okay? Last date লগে নৰখিবা. In 10 days it is totally a traffic, okay? बहुत टाइम लगे, सर्वर डाउन থাকে, কিবা আপলোড নহয়, এটু হয়, বহুত grievances তোমার ফাইল হৈ যায়, ঠিক আছে? নেক্সট প্রি এক্সামিনেশন ট্রেনিং, ये क्या है ये भी बताऊंगा, ओके? অনলাইন প্রিলিমিনারি এক্সাম কেতিয়া হ'ব? প্রিলিমস তোমার হ'ব অগস্টত, ঠিক আছে? অগস্ট। তো আমার হার্ডলি 1 month 10 days to 20 days আছে, সো এতিয়া পৰা আমাৰ লাগি যাব লাগিব, ওকে? ঠিক আছে, ওকে। আৰু তোমাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া হ'ব? অগস্ট নহলে সেপ্টেম্বৰ। অগস্ট লাস্ট উইক কো আएगा, नहीं तो सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक। मोस्ट प्रोबेबली आई फील लाइक सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक कोई आएगा एग्जाम, ठीक है? তাৰ পিছত 2-3 weeks পিছত তোমাৰ মেইনস এক্সাম হৈ যাব, ওকে? এটা তোমাৰ ইমান গ্যাপ দিয়া নহয় মেইনসত, সো ইফ ইউ আর প্রিপেয়ারিং यू हैव टू टेक मेंस आल्सो अलोंग, ओके? यू डोंट गेट दैट मच टाइम टू प्रिपेयर, सो मेंस को भी साथ पे लेके जाना है, ओके? ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ this is the final ad, okay? This is the total detailed advertisement that they have given, okay? So this is total a new feature, একদম ধুনিয়াকে নতুন ফিচার দিছে কি ইয়াতে তুমি আগত কি হৈছিলে, they used to give notification and then you have to search, okay? What are the criteria and everything. Here they have given you a tabulation manner, okay? You can just click and go wherever you want to go. Suppose I want to say participating RRBs, right? I want to say participating RRBs, just click on this, there you go, okay? They have come up here. So if I talk about Northeast region, okay? Northeast region কোন কোন ব্যাংক আছে? Assam Gramin Vikas Bank আছে, okay? Assam Gramin Vikas Bank. next अगर मैं देखूं यहाँ पे है, देखो मणिपुर रूरल बैंक, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक एंड नागालैंड रूरल बैंक, ठीक है? ये सारे हैं जो these are the participating RRBs, okay? So if you get selected, you get posting to such branches, okay? That is the main thing, ठीक है? चलो अब बाद में आते हैं हम, next we'll go to what? We will go to the eligibility criteria, ठीक है? Eligibility criteria. So let us see who are eligible for this exam, okay? So first, nationality, you should be an Indian citizen, okay? Or you can be a subject of Nepal, Bhutan, Tibetan refugee, okay? And also origin of Pakistan who have shifted to India, ठीक है? Okay? चलो ये हो गया nationality, ये तो सब लोग पता ही है, ठीक है? Next, age as on, देखो ये डेट दिया हुआ है, this is very important, okay? 1/06/2023, okay? आज के डेट में तुम्हारा एज क्या होना चाहिए? In this date you should be above 21 years, okay? But below 40 years. For which post? For officer scale 3, okay? Next, officer scale 2, same age criteria, but it should be below 32 years, ठीक है? तो इसका एज क्राइटेरिया थोड़ा छोटा है, ओके? यहाँ पे थोड़े एजेड लोग भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे 32 इयर्स तक का ही है, ठीक है? नेक्स्ट, फॉर ऑफिशियल स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 इयर्स अबव होना चाहिए तुम्हें और बिलो 30 इयर्स, ठीक है? ओके, एंड शुड हैव, अच्छा यहाँ पे इतने अच्छे से डेट भी मेंशन कर दिया, ठीक है? 1983 से पहले हो तो नहीं हो एलिजिबल, ओके? 1991 से पहले हो तो नॉट एलिजिबल, and 1993 before also not eligible, ठीक है? And here for office assistant it should be 18 to 28 years, so this is the most, you know, सबसे कम एज का क्राइटेरिया है, okay? So you must be careful, so you should not be elder than 1995, okay? 1995 before you should not be born, ঠিক আছে? ইয়াৰ আগত তুমি born হ'ব নালাগে, okay? Let's go to next, okay? age relaxation to সদায় থাকে, okay? For ST SC you have 5 years relaxation. 5 years relaxation मतलब क्या? अगर यहाँ पे 40 है मैक्सिमम तो तुम्हारे लिए 45 हो गया अगर तुम ST SC हो तो, ठीक है? बाकी ये सब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओके? विल कीप द वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज टू आवर नॉलेज, जितना जरूरत है उतना ही बात करेंगे, ओके? अच्छा, देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज फॉर फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटीज, ठीक है? तो ये भी हमें जरूरत नहीं है, ओके? बट वी मस्ट बी अवेयर कि कहाँ पे क्या है, ठीक है? हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए भी नए पॉलिसीज आए हैं, ओके? ठीक है, आई विल मेक अ डिस्कशन ऑन दैट ऑल्सो, ओके? चलो अब हम जाते हैं मेन्यू में, जाते हैं, ठीक है? इंडेक्स में जाते हैं। आप एज देख लिया, ठीक है? बाकी ये सब ठीक है, ये सब डिसेबिलिटीज का हो गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी बता देता हूँ फटाफट। एटू की है या तुमी कैटेगरी हो जाए कि you want to become an EWS, okay? If you are an EWS, then your annual income should be below 8 lakh rupees, okay?
and criteria which fulfill this only they will be considered as EWS. okay ধৰা তোমাৰ নিজৰ ঘৰ আছে আৰু তুমি কৈছা মোৰ ইনকাম টু 8 লাখ তলত আছে কিন্তু মোৰ নিজৰ ঘৰ আছে, still that time you are not an eligible for EWS. ठीक है, तो ये बस ध्यान देना, EWS का भी मैंने बता दिया. okay there's nothing much to say. Now let's go back to very important thing, that is educational qualification and experience. okay, this is the most important thing for any exam. okay, so if you want to appear for office assistant, okay, you should be bachelor degree in any discipline from recognized university. ठीक है, okay. They have mentioned two more things. These are the changes which has come. okay, so proficiency is in local languages prescribed by participating RRBs. so whatever state you are applying for, जे state তুমি apply কৰি আছা ন, तार लैंग्वेज लिखा पढ़ा दुनिया के जाने को लगेगा तुम्हारा. ओके, अगर नहीं जानते हो तो क्या होगा, तो उसका भी आंसर है, थोड़ा रुको बता रहा हूँ. ठीक है, डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब नॉट मैंडेटरी बट होना चाहिए. ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर में. ठीक है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग. ठीक है, एक्सपीरियंस नन, सो फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस. ओके, नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 1 ऑल्सो आई एम डायरेक्टली टेलिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज ओके, एनीवन कैन अप्लाई. ठीक है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज. ओके, दिस इज द वेरी न्यू थिंग दैट दे हैव केप्ट इन. ओके, बिफोर इट वाज नॉट मैंडेटरी बट नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी. और अगर नहीं है तो क्या होगा वो भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा रुको. ऑफिसर स्केल 2, ओके, दिस इज फॉर हायर क्वालिफिकेशन. ओके, सो यू मस्ट पोजेस 2 years एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट और गवर्नमेंट डज नॉट मैटर. ओके, बस ये होना चाहिए तुम्हारे साथ 2 years का एक्सपीरियंस. ठीक है, ओके, इसका एग्जाम क्या होगा वो भी बता रहा हूँ. ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे भी सेम. ओके, सो इसके 3 पोस्ट है. ओके, फर्स्ट इज ITO, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सो यू मस्ट बी ए CSC ग्रेजुएट. ओके, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड सो ऑन. ओके, डिजायरेबल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. ओके, डिजायरेबल बोला है, मैंडेटरी नहीं है. ASP, PHP, C++, जावा एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है, 1 year इन अ रेलेवेंट फील्ड, इट डजंट मैटर वेयर यू आर वर्किंग. ओके, कुछ भी होगा 1 year है, हो जाएगा. ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है और लॉ ऑफिसर के लिए है. ठीक है, चलो हो गया. ट्रेजरी मैनेजर भी है और मार्केटिंग ऑफिसर भी है. तो ये सारे पोस्ट ऑफिसर स्केल 3 के लिए. ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर विच इज नोन एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर. ओके, तो यहाँ पे सब में एक्सपीरियंस चाहिए, तो हियर फ्रेशर्स कैन नॉट अप्लाई. इवन इन ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर देयर आल्सो फ्रेशर्स कैन नॉट अप्लाई. ओके, मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया. ओके, अच्छा, अब क्या है कि बहुत बच्चों को होता है ना कि सर आई मीन फाइनल ईयर कैन आई अपीयर और नॉट. So see, here it is already mentioned declared on before 21/6/2023. So you must possess the degree before this date. Okay, अभी से ले लो 21st के आगे में अगर तुम्हारा डिग्री आ गया, suppose you have given the exam and you have got the degree, then only you are eligible. मान लो if 1 day prior also, suppose 20 को भी रिजल्ट आया, then also you are eligible. ठीक है, बट उसके बाद अगर 22 को भी आया ना, या फिर 21 midnight को भी आया, so you are not eligible. Okay, so college going students are not eligible for this exam, so you should make sure that you possess a degree. Okay, hard copy नहीं, soft copy तो होना चाहिए. Even if you have soft copy, that also will do. ठीक है, ये भी देखो, proper documents of board before 21. ठीक है, चलो ये बता दिया. ठीक है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, CGPA है तो इंटू 10 कर देना, और अगर बाकी का है तो ऐड करके डिवाइड बाय द सब्जेक्ट्स कर देना इंटू 100. ठीक है, अच्छा, अब 1-2 क्राइटेरिया दिया है. सो मान लो you have got 59.99%, so you'll round off to 60, right? But that will be taken as less than 60. ठीक है, okay. Okay, proficiency local language ये रहा. ठीक है, for recruitment of officer scale 1 and office assistant, proficiency local language specified below is essential. जरूरी है, बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, they'll give you 6 months of period. Okay, this is the main point which I wanted to highlight in this video. You will get 6 months time, and that time you can learn the language and you can come back to the board and you can say that, sir, I'm ready, I have prepared myself for the language and I can answer anything now. Okay, so you'll get 6 month time and that can be extended based on the RRB you are. ठीक है, अब मान लो मैं आसाम ग्रामीण विकास बैंक में घुस गया. ঠিক আছে, মই এতিয়া কি হল অসমীয়া ক'ব জানো, রাইট, কিন্তু মই লিখিব আৰু পঢ়িব নাজানো. ঠিক আছে, সো মোক টাইম দিব কি ঠিক আছে তুমি 6 মাহ লৈ লোৱা, শিকি আহা. যদি শিকিব নোৱাৰা দেন দে উইল ক্যান্সেল डायरेक्टली. ओके, बिकॉज दिस इज अ मस्ट. ओके, मैंडेटरी हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया this time. Okay, so this is the main kick in this particular notification. Okay, next, credit history. Okay, ये भी पहली बार आया. तो इसमें क्या है ना, suppose you have taken a loan somewhere, ठीक है, and then suppose due to some reason you could not pay in time, ठीक है, so you get what? You get a CIBIL score. What is a CIBIL score? CIBIL score decides that how that person has been giving the loan. Okay, कितने अच्छे से वो आदमी लोन दे रहा था, किमान भागे तुम्हें लोन दिया असेल, that decides CIBIL score. Okay, so CIBIL score should be 650 और अबव. उसके कम होगा ना तो भी तुम्हारा कैंसिलेशन हो जाएगा. ठीक है,
देन ऑल्सो यू विल बी कैंसल्ड, ठीक है, फाइनल स्टेज में तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दिस ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर लोन बिफोर, ओके, एंड दोज हु डज नॉट हैव बैंक अकाउंट देन नो प्रॉब्लम, ऐसे ही बैठे रहो आराम से, तुम्हारा तो जरूरत ही नहीं है, ओके। एंड दोज हु हैव बैंक अकाउंट बट देयर सिविल स्कोर इज लो, नो प्रॉब्लम, ओके, बट यू हैव बिकॉज यू डिड नॉट टेक द लोन। ये वही के लिए ले लो किसी ने लोन लिया था और वो नहीं दे पाया, ठीक है, तो सिविल स्कोर कम हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ओके। सो दैट टाइम दे कैन कैंसिल इट, ठीक है। और वैसे भी ये जनरली बैंक मैनेजर का ही पोस्ट है, तो इस पे तो बैंक का तो डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। चलो एप्लीकेशन फीस बता देता हूँ, ठीक है। ऑफिसर स्केल के लिए क्या है 175 फॉर ST SC एंड जनरल के लिए है 850। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम है, ओके। तो ये तो छोड़ ही दो। चलो ये में आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जाम इट इज एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट ईयर, ओके। लास्ट ईयर যেনেকে আহিছিলে তেনেকৈ আছে। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड আহিব তোমাৰ, ओके। ओनली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यू हैव टू फोकस इफ यू फुल्ली टारगेटिंग दिस एग्जाम, just target reasoning and aptitude for now, okay. So you'll get 40 questions for 40 marks, okay, and composite time of 45 minutes, okay. 45 minutes पे 80 questions करने हैं, मतलब whatever you wish you can do, okay. ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का सेक्शन का अलग मिनट है और इसका अलग मिनट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सिमिलरली हियर ऑफिसर स्केल 1 also reasoning and quantitative aptitude, okay. So those who are freshers you apply for both of these posts, ठीक है। दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो तुम, अप्लाई कर दो, ठीक है, एंड गिव एग्जाम फॉर बोथ, ठीक है, बिकॉज दोनों के डेट्स सेम डे पे नहीं होंगे, अलग अलग डेट पे आ जाएंगे, सो यू कैन अप्लाई, ठीक है। फॉर बोथ फोर्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, ओके। आई डोंट नो, ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स होगा, ठीक है, दोनों सेक्शंस को मिलाकर उसको कट ऑफ को क्लियर करना होगा, तभी तुम्हारा ये क्लियर होगा, ओके। एंड दिस ओनली क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन फॉर दिस, ओके। ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या होगा, तब तुम्हारा इंग्लिश आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा और कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ्स तो है ही, ओके, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट हिंदी यू कैन ऑप्ट हिंदी आल्सो, ओके। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है, यू कैन चूज एनी, ओके। चलो ठीक है, ओके। सो सी दे सेड दैट इन क्वालिफिकेशन राइट दैट डिजायरेबल नॉलेज कंप्यूटर, तो ये तो ऑलरेडी तुमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर स्टडीइंग कंप्यूटर देन यू विल हैव अ नॉलेज, ओके। So for reasoning 40 questions 50 marks, that means 1.25 marks each question, right? Similarly computer knowledge का 40 question 20 marks, ठीक है, 0.5 marks चलेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है, बाकी सब सेम है, ओके। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्क्स होंगे तुम्हारे, राइट, ठीक है। तो देखो रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। आई एम टेकिंग योर रीजनिंग, सो प्लीज अटेंड द क्लास रेगुलरली, ओके, बिकॉज रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 50 मार्क्स रीजनिंग से उठा सकते हो तुम अगर सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया तो, ओके। नाउ ऑफिसर स्केल 1 आल्सो सेम पैटर्न, ओके, इट्स एक्जैक्टली सेम लाइक ऑफिस असिस्टेंट ओनली, ठीक है, सेम 50 20 40 40 एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। तो मेंस में क्या मिलेगा, कंपोजिट 2 आवर्स मिलेगा, यू विल गेट 2 आवर्स फॉर मेंस, ठीक है, डन, ओके। आई विल गो बैक, आई एम गोइंग फर्दर, ठीक है, ठीक है। कॉल लेटर्स, अच्छा ये सब कर दिया, ये सब अप्लाई कर दिया, बाद में तो कॉल लेटर मिल जाएगा, ठीक है। वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, ओके। सो दिस इज द यू नो मीडियम ऑफ एग्जामिनर्स दैट दे आर ऑफरिंग, ओके। देखो आसाम में की है इंग्लिश, हिंदी एंड आसामिज, তুমি অসমীয়াটো এক্সাম দিব পাৰিবা, ঠিক আছে। যদি তোমাৰ অসমীয়া স্ট্ৰং আছে সো ইউ ক্যান অপ আসামিজ অলসো, ओके। सो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी दिस, ठीक है, यू कैन ऑप्ट दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेघालय इंग्लिश एंड हिंदी, अदर्स इज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा ये अब ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए जो अप्लाई करें ना, उनका बस एक ही एग्जाम होगा, ओके। And that exam will be the qualifying nature, and you'll get this marks will also be taken to your interview also. Interview run होगा और computer sufficiency test भी होगा, ठीक है। So there will be only one exam for this exam. So if you have the proper eligibility criteria fulfilled, then you can give this exam, okay. But freshers ये exam नहीं दे सकते, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, because you will not be able to give the exam because you do not have an experience, okay. हाँ, कंप्यूटर साइंस वाले अगर 1 year एक्सपीरियंस है कोई चीज में, सो यू कैन अप्लाई, ओके। सो ओनली 1 फेज इज देयर, सो ओनली 1 फेज क्लियर करो, बस खत्म। अच्छा पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ओके। सो पेनल्टी 0.25, ठीक है, 0.25 का पेनल्टी लगता है, ठीक है। सो कट ऑफ स्कोर, ओके। सो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम कट ऑफ स्कोर, ठीक है। सो कट ऑफ स्कोर तुम्हें क्लियरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके ही तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। यह है प्रीलिम्स के लिए, सिमिलरली मेंस का भी वही है, ओके। एंड जनरली मेंस जैसे ऑफिस असिस्टेंट है ना, फॉर ऑफिस असिस्टेंट ओनली मेंस विल बी कंडक्टेड, पर्सनल इंटरव्यूज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू भी तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन योर मेंस मार्क्स एंड द इंटरव्यू मार्क्स दैट यू हैव सिक्योर्ड, ठीक है। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये रहा
देखो एक बार बता देता हूँ, स्कोर ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी मेंस सिंगल, ठीक है, सिंगल हो गया ऑफिसर 2-3 के लिए, ठीक है। द करेक्ट स्कोर ऑब्टेन बाय ईच कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेट डिफरेंट सेक्शन विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक है। एक मेथड होता है जिससे ओवरऑल देखते हैं, सारे डिफिकल्टी देते हैं, वीक स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, टॉपर को भी लेते हैं, सब मिला कर एक नॉर्मलाइज मार्क्स बनाता है। तो दैट मेथड विच दे यूज इज इक्वी परसेंटाइल मेथड, ठीक है। स्कोर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट शैल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। 2 डेसिमल पॉइंट तक का एक्यूरेसी ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल मार्क्स ऑब्टेन ओनली इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ओनली मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स कंसीडर होगा फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिसर स्केल का नहीं किया हो, सो यार तुम्हारा 3टा सेक्शन और मार्क्स होगा, ओके, मेंस एंड इंटरव्यू 2 हो गया। उसके बाद फाइनल मेरिटिंग लिस्ट बनेगा तुम्हारा, उस पर तुम्हारा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को देखकर मेरिट बनाएंगे, ठीक है। एंड फॉर स्केल 2 जनरल, ओके, ओनली सिंगल एग्जाम विल बी गिवन and based on that you have to give for interview, okay, you have to give interview and then you have to get the whatever seat that you want, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर दिया हुआ है, ठीक है, आरआरबी जो कर रहे हैं वही स्टेट पे सारे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू दिस नाउ, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, व्हाट इज दिस? सो जनरली दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू द कैंडिडेट्स, ओके, हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। अच्छा, ऑब्वियसली हम सब खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, बट दिस इज जनरली मेंट फॉर एसटी, एससी, अदर बैकवर्ड्स क्लासेस स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो कोई गरीब है, ही कैन नॉट अफोर्ड, यू नो, फोन भी नहीं है जिसके पास, ठीक है, वो खुद पढ़ रहा है, सो फॉर देम दे आर गिविंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ओके। सो IBPS, RRB are very genuine to those candidates also. They will never discriminate anyone, okay. So they have given a special feature for them that, if you have difficulties, then you can come and take the pre-examination training, okay. So pre-examination training কোট হ'ব? So generally তোমার RRB জেসা আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক আছে, তার ভিতৰতো হৈ যাব পাৰে বা তোমাৰ অনলাইন মেথডতো হৈ যাব পাৰে। জেনাৰেলি আজিকালি অনলাইনে চলি আছে, ওকে। ইভেন মাই স্টুডেন্টস हैव गिवन व्हाइल दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सीट बी एग्जाम्स, ओके। सो इट वाज बेस्ड ऑन ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर सेंटर में बुलाया तो वो भी मिल जाएगा, और अगर नहीं तो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू अवेल प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग शुड फिल द रेलेवेंट कॉलम इन वन लाइन एप्लीकेशन। सो आफ्टर दिस यू विल गो एंड फिल द एप्लीकेशन, राइट, देयर विल PET, ओके, उस पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लिखा होगा, यू हैव टू टिक यस, ओके, you have to tick yes, okay। और ऐसा नहीं है कि ये कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। they have mentioned this also, okay। generally students भावे अच्छा এই ব্যাংকে মোক ট্রেনিং দিব, সো অবভিয়াসলি মোৰ সিলেকশন হৈ যাব, ঠিক আছে, এনেকা নহয়, ওকে। দিস নট দ্য থিং, ইউ হ্যাভ জাস্ট তোমাক হেল্প কৰিব কি এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহে, সো ইউ প্ৰিপেয়াৰ বেসড অন দ্যাট, ওকে। জেনাৰেলি তোমাৰ 10 বা 15 দিন মান চলে, ওকে, এক্সামৰ আগত, ওকে, এক্সামৰ আগত। সো ইউ ক্যান গো এন্ড অ্যাটেন্ড, ওকে। দিস ফর ST, SC, OBC एंड अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू राउंड ये हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला काम है कि मेंस निकालना है, ठीक है। लिस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वेरिफिकेशन, दिस ऑल विल बी डन ऑन योर आफ्टर योर मेंस एग्जाम। पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में ये सब वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजनल अलॉटमेंट ये सब भी बाद में होगा, ठीक है, आफ्टर यू गिव मेंस एग्जामिनेशन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आईडी एक्सेप्ट करते हैं। सो जनरली व्हेन यू गो टू अपीयर एग्जाम, सम centers they do not accept your Aadhaar card, so make sure you take voter ID is the best ID you can take, okay। पैन कार्ड भी मत ले जाना, वोटर ID लेके जाओ, वो हर जगह एक्सेप्ट होता है, ठीक है। so I would suggest you that you take voter ID, okay, and you have to carry 2 passport size photo। एक तो तुम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगाओगे और एक तुम्हें वेन्यू पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 passport size photos you will carry, okay, and generally you should reach the examination center before 1 hour prior, ठीक है। चलो अब आते हैं हम इस पे, ठीक है। अब वैकेंसी का बात कर लेता हूँ, ठीक है। I will talk about the vacancy now for you, okay। यहाँ पे अगर देखूँ मैं, I have covered all the points, ठीक है, all important points I have covered, ठीक है। वैकेंसी पे जाएंगे, ठीक है, वैकेंसी देखेंगे अब। चलो देखो ये है वैकेंसी, ठीक है। आसाम का देख लो, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, SC के लिए 44 है, ST दिस आर द रिजर्वेशंस, जनरल 120, टोटल 296, ठीक है, 296। दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये है, ठीक है, अच्छा खासा है। देखो बाकी स्टेट से तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। Suppose now if I want to see for Meghalaya, in Meghalaya there are how many vacancies? 24 vacancies in total, ठीक है। Next Mizoram 45, okay। Nagaland only 3 vacancies are there, ठीक है। So you have to prepare yourself better, okay। The candidates of Nagaland who are watching this video, you must prepare yourself a bit more better, one step forward than others, ठीक है। ऑफिसर स्केल का बता देता हूँ, आसाम का है only 35, ठीक है। So ऑफिसर स्केल इज जनरली ऑफ PO लेवल, ओके, प्रोविजनल ऑफिसर जो बोलते हैं ना, बैंक में दे यूज PO एंड क्लर्क, ओके, बट RRB दे डू नॉट यूज PO एंड क्लर्क, दे यूज ऑफिसर स्केल एंड ऑफिस असिस्टेंट। सो ऑफिस असिस्टेंट इज क्लरिकल लेवल एंड ऑफिसर स्केल इज योर PO लेवल, ठीक है।
दैट ऑल्सो आई हैव क्लियर। ओके, अरुणाचल का बताना भूल गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना था? सो आई विल टॉक अबाउट अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश यू हैव 12 वैकेंसीज, ठीक है। सो ये जो कम वैकेंसीज है ना, वो ध्यान देना। आसाम ग्रामीण विकास बैंक और आउटपुट की बेसी वैकेंसी ऐसे नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा आसाम ग्रामीण विकास बैंक का ही वैकेंसी है, ठीक है। अब मेघालय में देखता हूं मैं, फॉर दिस ओनली 10 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। सो ये हो गई वैकेंसीज, राइट। वैकेंसीज भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इफ यूर आस्क्ड सर टोटल वैकेंसीज कितना है, what is the total vacancy, I'm telling you in a while. Okay, just a minute, let me see one more thing if I have missed anything. Okay, let me see if I have missed anything. Examination centers, okay, whatever RRBs are organizing from any state, you'll have the vacancies, I mean examination centers there itself. Okay, बाकी एबूस ऑफ जो लास्ट ऑफ दिया है तुम्हारा annexures and all, these are the later on process. Okay, so for that also I'll bring now the video. Okay, for now we just have to focus on prelims. Okay, prelims, that also what, maths and quants, and I'm giving 2 classes. Okay, so you can join those classes. सच बोल रहा हूँ, फायदा होगा। Okay, and from now only you should start giving the mocks. Okay, mocks लगाना चालू कर दो भाई, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, because you have to, you know, be prepared. Okay, with the examination stress, examination pressure, ठीक है। चलो vacancies बता देता हूँ, ठीक है। I will talk about the vacancy now quickly. Okay, and then we'll end the video. Okay, let's talk about the vacancy. Okay, so total vacancies is your total vacancy जो है 8,612 vacancies are there. Okay, in which your office assistant vacancy is 5,538. Okay, and your officer scale vacancy is 2,484. Okay, so compared to last year you have almost 800 plus vacancies this year. Okay, and this generally is happening because of the 2024 election which is upcoming. Okay, so take your chance. Okay, Assam also has taken out 22,000 vacancies for you, so इसके लिए prepare करो, उसके लिए prepare करो, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, ठीक है। Your main focus is just to get the government job, right? So do that. For now I'll end the session here. Okay, my dear students, I hope you've understood all the points. I have discussed most of the points, okay, which I have seen. Okay, and if I've missed any, you can comment down below. Okay, but mind one thing, that proficiency in language is very important. Okay, language proficiency test তোমালোকৰ হবই হব। Okay, আৰু তাতে চাব যে তুমি লিখিব পঢ়িব জানে নে নাই হে language for the state you're applying. Suppose if you're applying for Meghalaya, you should know Khasi. Okay, you should know how to write, you should know how to read. Suppose you're applying for Assam. Okay, অসম পৰা এপ্লাই কৰি আছা যদি, অসমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব হলে তোমাক অসমীয়া জানিবই লাগিব। Okay, অসমীয়া লিখা আৰু পঢ়া দুটাই আহিব লাগে, ঠিক আছে। बाकी स्टेट का तो ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, इंग्लिश एंड हिंदी, सो बाकी का ठीक है, बट ये सब स्टेट का बोल रहा हूँ, अखमर तो तुम्हें अखमिया जानिब লাগিব। ओके, और आसाम स्टेट मतलब यू नो इन इंडिया ऑल्सो इट्स वेल नोन, ठीक है। सो you must prepare yourself in that ways, ठीक है। So full strategy video I'm bringing in a while. Okay, there I'll be telling you how to get 80 out of 80 in prelims, ठीक है। If not 80 out of 80 also, at least 65 out of 80 तो लाना ही है, because अभी तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर आई थिंक द कट ऑफ वेंट टिल 61, ठीक है। सो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर। ओके, अलग अलग पोस्ट का वेरी करता है, ठीक है। ऑफिसर का थोड़ा कम, एओ का बहुत जाता है। ओके, ऑफिस असिस्टेंट का काफी अच्छा कट ऑफ जाता है। सो वेल माय कैंडिडेट्स, आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल टू यू। ओके, आई होप you've gotten a better idea now about the exams, right? So I thought of making the video short, but थोड़ा लंबा हो गया, so spare me. You can चलो, anyways, thank you all, thank you for joining. Okay, I'll see you in this upcoming session of full strategy of how to score 80 out of 80. Okay, and I promise that session will be very small. Okay, chalo, thank you and take care.